ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਨਫਾਰਮੈਟਡ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 7 ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 2-3 ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਸੋ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਜਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੈਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ, ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਜੋ ਡਾਟਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀ XYZ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ XYZ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਨਪੁਟ। ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫੋਰਟਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। C ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ printf ਤੇ scanf ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲ ਲਿੱਤੀ, ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਐਵਰੇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ X + Y + Z/3, ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਐਵਰੇਜ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰੀਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ XYZ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ XYZ ਨੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਨੇ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਇਹੀ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਫਾਰਮੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਰਮੈਟ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈਣਾ, ਰੀਅਲ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਲਈ -273, ਤਾਂ -273 ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਜਿਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, 1 2 3 4, ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੇਸ ਇਹਨੇ 4 ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 4 ਉਹਦੀ ਸਪੇਸ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ -7 2.8, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ 1 2 3 4 5 ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਗਿਣਨੀ ਹੈ, 6 ਫਿਰ 7 8 9, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਹੋ ਗਈ, 9। ਸੋ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ 9 ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਅਲੱਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਦਾ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਟੋਟਲ ਵਿਰਥ ਅਤੇ ਡੈਸੀਮਲ ਦੀ ਵਿਰਥ, ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਰਹੇ, ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ। 1 2 3 4 5 5 ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਹੈਗੀ 9, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, 5। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵਿਰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ 9.5, ਟੋਟਲ ਵਿਰਥ ਅਤੇ ਡੈਸੀਮਲ ਵਿਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 7.25 ਦੀ ਟੋਟਲ ਵਿਰਥ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ, 7.25 ਦੀ 4 ਆ, 1 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਾਲਤੂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 2 ਨੇ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ 5.2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ 8 ਬੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਣ ਕੇ,
पॉइंट तो बाद वाली 1 तो 8.1। सो ये तुहानूं हजे सिर्फ एग्जाम्पल ने दसदे पे सीगे कि किवें इंटीजर्स दी आपां विड्थ काउंट करते हैं। हुण तुसीं फॉर्मेट स्पैसीफिकेशन ते आ जाओ। तो फॉर्मेट स्पैसीफिकेशन दे विच आपां पहलां ये दसदे पे हैं कि फॉर्मेट स्पैसीफिकेशन च स्टेटमेंट किद्दां लिखी जाती है फोर्ट्रान च। तुसीं लिखदे हो एन, फिर फॉर्मेट कैपिटल लिखना, फिर ब्रैकेट दे विच S1 S2 SN। एन हुंदा वा उहदा नंबर, एन जो है वो स्टेटमेंट का नंबर होंदा। जो मैं तुहानूं कल दस्सिया सी कोडिंग शीट, तो कोडिंग शीट 5 लाइनां छड्डदे आ, तो आप स्टेटमेंट का नंबर अगे पा दिंदे हो ना, 5 विच किते भी पा सकते हो ना, स्टेटमेंट उसका नंबर पा देंगे क्योंकि आप फॉर्मेट स्टेटमेंट का अगे यूज़ करते हैं। सो अगे किते यूज़ करना वा तो मैं दसना पेगा कि किहड़ी स्टेटमेंट यूज़ होंदी पई आ, तो मैंने कॉल करनी एक तरीके नाल उहनूं। अगर कॉल करनी तो उहदा इहदे विच की प्रोसीजर है कि आप उहदा नंबर दे दिंदे आ। तो नंबर दिता एन फॉर्मेट, फिर S1 S2 SN की होंगे उन्होंने स्पैसीफिकेशनस। जिमें सपोज तुसी इत्थे तुसी 4 वैल्यूज़ लैनिया या 3 लैनिया X Y Z, मैं मान लो 3 वैल्यूज़ लैनिया सी। सो तिन्ना दा मैनू दसना पेगा कि वो किस तरह का वा। जो तीनों इंटीजर है तो मैं लिखांगी I, फिर उनका साइज़ भी नाल दसना पैंदा कितना I, जो 3 डिजिट का लैना तो I3, जो 4 का लैना तो I4। ये आपां हुणे करांगे अगे जाके। सो S1 S2 SN की होंगे, इन्होंने स्पैसीफिकेशनस बोलते हैं, फॉर्मेट स्पैसीफिकेशनस। और इन्हों तुसीं ब्रैकेट दे विच लिखदे हो, ब्रैकेट शुरू करके ब्रैकेट खत्म करनी है। रूल्स दसे हुए उन्हें सैपरेटेड बाय कॉमा होने चाहिए, तो उन्होंने स्टेटमेंट का नंबर देना जिहड़ा वा वो फॉर्मेट का जरूरी है। नैक्सट एक होर चीज़ दसदा पिया वा, फिर आप फॉर्मेट्स करांगे किहड़े है, कैरीज कंट्रोल। कैरीज कंट्रोल की हुंदा वा कि अपन जिवें मैं तुहानूं कह रहे ना प्लस माइनस वाला हुंदा, इदां ही ना जो आप आउटपुट देनी है ना, तो आउटपुट से हमेशा तुसीं एक फालतू देना हुंदा वा। सपोज मैं आंसर देना ए दी वैल्यू हैगी मेरी 43, तो मैं 43 जिहड़ा वो प्रिंट करवाना वा, तो मैं इहदा जिहड़ी 2 स्पेस नहीं लऊँगी, इहदी मैं 3 स्पेस लऊँगी, क्योंकि जिहड़ी एक्चुअल दे विच एक स्पेस आ ना, वो फोर्ट्रान दे विच इनबिल्ट थोड़ी कह लो कि उहदी एक स्पेस वो ब्लैंक स्पेस की तरह डील करता ही करता। वो प्रॉब्लम कह लो जो उनकी अंदर कंस्ट्रक्शन ही इदां की हुई है कि वो एक नूं ब्लैंक स्पेस की तरह ट्रीट करता वा। जे तुसीं इहदा साइज़ 2 दे दोगे तो वह सिर्फ 4 प्रिंट करूगा, 3 नहीं प्रिंट करेगा। सो आउटपुट वेले हमेशा आप एक फालतू दिने ही दिने, घट तो घट एक विर्थ जी फालतू दिने, आप एक डिजिट की एक्सट्रा दिने उहदे विच, ठीक। इनू तुसीं इनपुट वेले भी दे सकते हो, आप रूल ही बना लेने कि इनपुट आउटपुट जो तुसीं प्रोग्रामिंग करनी है फालतू ही दो हमेशा, पर आउटपुट वेले तो पक्का ही देनी है, इनपुट वेले फिर भी चल सकता वा। सो सिंपल तुसीं ना हुण इहदे च आपां स्पैसीफिकेशनस करदे आ आई फॉर्मेट। तो आई फॉर्मेट किवें अपने कोल किवें यूज़ करदे आ, जे सपोज तुसीं इंटीजर देना एक्स की वैल्यू देनी है, रीड करानी है, तो उन्होंने की लिखना आई, जे उनके 3 डिजिट लैने तो I3 ले लेना, जे 4 लैने तो I4 ले लेना। तो नाल उहदी की दसदे आप विर्थ दसदे I ते W विर्थ नाल दसदे आप। तो इन साइन की भी इनकलूड करनी आ, तुसी विर्थ लैनी आ, पॉइंट्स इहदे च आना नहीं क्योंकि आई जिहड़ा वा दैट इज़ फॉर इंटीजर। सपोज मैं 4 नंबर ले 3, इन्हों मैं टाइप करना चाहनी है, तो जो मैंने उन्होंने फॉर्मेट स्पैसीफिकेशन करना है तो मैं की लिखूँगी I4 1 2 3 4, I5 लिख सकती है पर 4 तो घट नहीं लिखना। ये कितना 1 2 3 एक तुसी लेना वा प्लस साइन का, तो यह भी I4 हो गया, यह भी I4 हो गया। सो एक तरीका तो यह है कि फॉर्मेट इदा लिख लो, जे वो सेम ही बनते पे I4 तो आप 3 टाइम्स I4 भी लिख सकते हैं बिना कोई स्पेस दिते। सो इस तरह आप दे देंगे। हुण I4 तुसी इदा भी देख सकते थे कि क्यों 4 दिता, आप जिवें आ नंबर से इदा प्रिंट कराने से आप, तो इतने 1 2 3 4 एक उन्हें स्पेस छोड़नी सी, ताही नहीं तो नंबर पूरा इकट्ठा बन जाना सीगा। तो एक जी स्पेस है ता करके उन्हें I4 नैक्सट वास्ते 4 डिजिट्स का यूज़ कर लेता, उस तो नैक्सट वास्ते 4 डिजिट्स का यूज़ कर लेता। इदा कर लो ज़्यादा क्लीयर है कि इनके लिए तुसी प्लस माइनस लिए आप ना भी अगर मनीए, माइनस लिए तो लेना ही लेना, प्लस लिए अगर ना भी मनीए तो भी अपन एक स्पेस छोड़नी पैनी है, तो स्पेस के लिए तुहानूं एक एक्स्ट्रा लेना ही पैना सीगा। हुण अगले ते आ जाओ, ये हैगा वा पहला एक स्पेस आ, फिर 1 4 8, तो स्पेस लिए भी एक देना पेगा तुहानूं, तो 1 2 3 4 तक की देता मैं I4, फिर मेरा प्लस आ रहा 1 2 3 तो I3,
फिर -1 2 3 तो ये I3, फिर 1 2 3 4 5 I5। जे सपोज मैं इत्थे I4 दे दिंदी तो मेरा थर्ड प्लेस तो बाद विच एक जगह बच जानी सी, फिर प्रिंट होना सी, इत्थे खाली जगह फिर माइनस विच आना सी। मतलब जिन्ने तुसीं स्पेस ज़्यादा दे दिंदे हो फिर उन्हां 'च गैप आ जांदा तुहाडे कोल। I3 सेम आंदे पे आपां इहनूं 2 टाइम्स I3 भी लिख सकदे हो, पर जे I3 पिछे आंदा हुंदा इत्थे विच I5 हुंदा फिर नहीं मैं लिख सकदी सी, फिर की हो जाना सी, वो दो इकट्ठे हैं। मतलब इहदा मतलब कि कंजैक्टिव होने चाहिए आ। जे कंजैक्टिव नहीं है तो फिर वो सैकेंड वाली वैल्यू नूं I3 मान लेना सी उन्हें I5 की जगह पर। सो कंजैक्टिव वाले नूं आपां इकट्ठा कर सकते अगर सेम आंदे हो। सो ये I फॉर्मेट करने वास्ते आ। नैक्सट जिहड़ा है F फॉर्मेट वास्ते आ। तो F फॉर्मेट फिर आप E फॉर्मेट भी करांगे, क्योंकि तुहाडे कोल फ्लोटिंग पॉइंट नूं लिखण दे दो तरीके ने। एक तुसीं 10.3 लिख सकते हो, एक तुसीं 1.03 इंटू 10⁻1 या 0.103 इंटू 10⁻2 दो किते सी ना आपां, एक एक्सपोनेंशियल एक फ्रैक्शन वाला जिवें किता सी, उदां ही इहदे विच भी अपने कोल एक F फॉर्मेट आ ते एक E फॉर्मेट आंदा वा। फिर उस तो बाद विच अपने कोल X फॉर्मेट आंदा वा। X फॉर्मेट जिहड़ा वा वो तुसीं स्पेस वास्ते यूज़ करदे हो, स्पेस पाउण दे लई। फिर स्लैश एक यूज़ हुंदी आ। A फॉर्मेट जिहड़ा वा करैक्टर लई यूज़ करदे हो। कोट फॉर्मेट, T फॉर्मेट, ये सारे फॉर्मेट इन्हां 'च यूज़ कीते जांदे आ। मेजर यही आंदे फॉर्मेट स्पैसीफिकेशनस काफ़ी सारे इहदे 'च हैगे आ। उस तो बाद जो रीड स्टेटमेंट आती है, तो एक फॉर्मेट किया हजे तक आप, मैं F फॉर्मेट दस देनी, बाकी फिर बाद विच करांगे। F फॉर्मेट दे विच की करते आप, जो पॉइंट्स लैना इदों तो यूज़ करना तुसी F, जिवें I करते सी उहदे लई इहदे च F लैना वा। फिर इहदे च विर्थ दो ने, जिवें आपां देखिया सी ना, विर्थ एक टोटल विर्थ है, एक डेसीमल विर्थ आ। तो इत्थे तुसी उदां ही तुसी W.D, ए हैगी टोटल विर्थ, D हैगी डेसीमल विर्थ। तो तुसी इदां इहनूं स्पैसीफाई करना। सपोज कहंदे आ एग्जाम्पल ले लैंदे आ, तुसी इस नंबर नूं प्रिंट कराना। तो पहला तो एक स्पेस आ, 1 2 3 पॉइंट दी 4 5 इत्थे तक नंबर आ। तो मैनूं पता लग गया कि इहदा किहड़ा लऊँगी मैं, F। तो 5 पॉइंट सभा कितना वा 1, 5.1। फिर कॉमा नवा नंबर आ गया 1 2 3 4 5, ये भी 5 ही आंदा पिया वा, पर पॉइंट सभा किन्ने 2, सो 5.2 F लिखांगे, I नहीं लिखांगे इहदे च। 1 2 3 4 5 6 7, सो ये हो गया 7 पॉइंट तो बाद 2, तो 7.2। सो ये तुसी स्पैसीफिकेशन तुसी F फॉर्मेट दे विच कर सकते हो। इदां ही अगली ये दित्ती हुई है 1 2 3 4, तो F 4.1। फिर अगे 1 2 3 4 1 2 3 4 ही, ये भी 4.1, 1 2 3 4 ये भी 4.1। तो इन्हूं तुसी 3 टाइम्स 4.1 भी लिख सकते हो। नैक्सट एक्सपोनेंशियल आ जाता है, ये नैक्सट वीडियो च करते हैं।